Hello, my dear students, how are you? I hope all of you are quite well. In this video, I am going to recapitulate the concept of conjunctions. We have already done conjunctions in detail in our previous videos. We have already discussed about conjunctions, their meaning, types, examples, etc. Now, in this video, I am going to tell you in brief. Conjunction is a word or set of words that connects two words, phrases, clauses in a sentence. As you know, conjunction जो होता है बेटा एक वर्ड है या सेट ऑफ वर्ड्स का एक सेट ग्रुप होता है जो एक सेंटेंस में क्या करता है, कनेक्ट करता है कहीं दो वर्ड्स को, समटाइम्स फ्रेजेस एंड समटाइम्स क्लॉजेस इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में कई बार ये वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you should know what are phrases, clauses. I am going to show you with the help of examples. I like mangoes. I like oranges. I like mangoes and oranges. Here in this example beta, two words mangoes and oranges are connected with the word and. And this word and which is used to connect two words is known as conjunction. Conjunction and is used to join two words in this example. Now come to the next one. He plays in the playground near his house. He plays in the school playground. He plays in the playground near his house or in the school playground. In this sentence, beta, two phrases in a playground near his house and in the school playground are connected with the word or, and this word or is conjunction which is used to join two phrases. Come to the next example. She likes parrots. A complete sentence, एक clause है बेटा ये. Her family likes dogs. Another clause. She likes parrots, but her family likes dogs. These two clauses are connected with the word but, and this word but is conjunction, which is used to join two clauses. Now, I am going to give you some examples of different types of conjunctions with reason. Why this conjunction is used here? Now, first one, she worked hard. बेटा शी वर्कड हार्ड, इट इज़ अ पॉजिटिव आस्पेक्ट, पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव आइडिया है कि उन्होंने मेहनत की. बट कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट, दिस इज द नेगेटिव थिंग. बट कंजंक्शन इज यूज्ड हियर विच इज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, एंड इट इज़ यूज्ड हियर टू शो टू डिफरेंट ऑपोजिट आइडियाज़. Next one, she is overweight for she eats a lot. Two sentences, she is overweight, she eats a lot. These two are connected with conjunction for, which is a coordinating conjunction, and it shows reason here कि वो overweight क्यों है. Come to the next sentence. If you don't want to study, you can sleep. इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू स्टडी, कंडीशन है अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, यू कैन स्लीप, आप सो सकते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग कंडीशन इज यूज्ड हियर इन दिस एग्जाम्पल. इट इज सो लॉन्ग सिंस आई मेट हर. सिंस is a conjunction which shows time. Since is a subordinating conjunction which is used here to connect two sentences. It is so long, काफ़ी समय हो गया है. Since I met her, जब से मैं उनसे नहीं मिली. That is why it is subordinating conjunction showing time. Now come to the next example beta. Though it was raining, he went out. Though
Though conjunction is used to show opposite thoughts. दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, ही वेंट आउट, फिर भी वो बाहर चले गए. इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग ऑपोजिट थॉट्स. बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन इंडिया. इंडिया में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. बेटा जहाँ पेयर्स में कंजंक्शन यूज़ की जाती हैं उन्हें हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं. एंड बोथ एंड आर यूज टू शो एडिशन. कोरिलेटिव कंजंक्शन दो टाइप की होती है, एक चॉइस ऑप्शन को दिखाने वाली और दूसरी एडिशन को. यहाँ बेटा एडिशन को शो करने के लिए हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ की है. बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी तो बोली जाती है, हिंदी के साथ साथ इन एडिशन टू हिंदी इंग्लिश इज ऑल्सो स्पोकन इन इंडिया. ही नॉट ओनली स्पीक्स बट ऑल्सो राइट हिंदी. अब बेटा यहाँ नॉट डबल हो गया है बाय मिस्टेक. ही नॉट ओनली स्पीक्स, वो सिर्फ बोलते ही नहीं बट ऑल्सो राइट्स, लिखते भी हैं हिंदी को. अगेन टू कंजंक्शंस इन पेयर इज यूज्ड. अब यहाँ देखो दो कंजंक्शन यूज की गई हैं पेयर में. इट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन शोइंग एडिशन, सिर्फ बोलते ही नहीं लिखते भी हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल गो बाय बस और बाय कार. ऑप्शन पूछा गया है कि वो बस से जाएंगे या कार से. और जब ऑप्शन और चॉइस की बात की जाती है तो बेटा वेदर जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज़ किया गया है. यू must decide whether you will go by bus or by car. Subordinating conjunction here is used to show choice. Unless is used to show condition. If unless condition को show करने के लिए यूज किए जाते हैं. and these are subordinating conjunctions. Unless you ask her, जब तक आप पूछेंगे नहीं, you will never know, आपको पता नहीं चलेगा. Now come to the next sentence. I like neither ice cream nor cake. ना तो आइसक्रीम पसंद है ना ही केक. कोरिलेटिव कंजंक्शन. क्यों है ये? वेरी गुड, चॉइस को दिखाता है ये. कोरिलेटिव कंजंक्शन शोइंग चॉइस इज यूज्ड हियर कि ना तो आइसक्रीम पसंद है और ना ही केक, दोनों में से कोई भी नहीं. आई लाइक टी बट माई सिस्टर लाइक्स कॉफ़ी. मुझे टी पसंद है बट माई सिस्टर लाइक्स कॉफ़ी, सिस्टर को कॉफ़ी पसंद है. ओपोजिट थिंग्स पसंद है, इसीलिए बेटा बट यूज़ किया गया है. एंड इट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग ओपोजिट थिंग्स. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. ही अर्न्स सो दैट ही कैन लिव हैप्पीली. ही अर्न्स मनी, वो पैसा कमाते हैं. क्यों कमाते हैं? रीज़न क्या है? पर्पस क्या है? ही कैन लिव हैप्पीली, ताकि वो खुशी से रह सके. इट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. शी इज़ वेरी हेल्पफुल, एवरी वन लाइक्स हर. शी इज़ वेरी हेल्पफुल, सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं वो, इसीलिए उन्हें सब पसंद करते हैं. अब बेटा यहाँ रिजल्ट दिखाया गया है उनके हेल्पफुल होने का कि वो हेल्पफुल हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? एवरी वन लाइक्स हर. शी इज़ हेल्पफुल सो एवरी वन लाइक्स हर. सो रिजल्ट को दिखाने वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है बेटा यहाँ. ही हिड वेयर नो वन कैन फाइंड हिम. वो ऐसी जगह छुप गए जहाँ कोई भी ना ढूंढ सके. ही हिड वेयर, यहाँ वेयर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शोइंग प्लेस. जो प्लेस को दिखाती है एक ऐसी ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ही हिड वेयर नो वन कैन फाइंड हिम, जहाँ कोई ना ढूंढ सके. वेयर इज यूज्ड हेयर टू शो प्लेस, प्लेस के लिए यूज किया गया है. आई होप बेटा ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द concept of conjunctions. And till now I hope it is clear which type of conjunction is used in which sentence and why. I hope it is clear to you now. Thank you and have a nice day ahead.